تھوڑا سا کر لیا کریں. جی ایرانی بھائی. جی تو میرا کوشچن جو ہے کائنڈ آف لائک تھوڑا سا میں جانتا بھی ہوں لیکن شاید ڈیٹیلز اس کے بارے میں ہو. تو میں کوشچن اس طرح کا اوریجن آف یونیورس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو obviously بات ہے کہ ایتھسٹک پوائنٹ آف ویو بالکل لائک اس سے زیادہ مورونک پوائنٹ آف ویو تو ہو ہی نہیں سکتا. ان کا آنسر ہی نہیں ہے ایکچولی. بس ہے تو ہے. ہم سائنٹیفکلی جب بات کرتے ہیں فرسٹ ایٹم کی ہم بات کریں, اس سے بھی نیچے جائیں, کوارکس میں جائیں, نیوونس میں جائیں, میونس میں جائیں, کچھ بھی ایک فرسٹ کچھ تو ہونا چاہیے فار دا اوریجن آف دس یونیورس. ٹھیک ہے, جو کہ میں جانتا ہوں, جو میں نے پڑھائی کری, تو اس بارے میں مطلب ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا کہتا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ دس ان لٹل ڈیٹیل کہ تھوڑا سائنٹیفک اپروچ بٹ اسلامک پوائنٹ آف ویو وتھ سائنٹیفک اپروچ کیا کہتا ہے. جی کیسر بھائی. اسلامک جب سائنس کی بات آتی ہے میرے بھائی, تو اس وقت اسلام آپ کو انکریج کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو ڈھونڈیں. ہر زمانے کے حساب سے جتنی بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ چیزوں کو ڈھونڈیں. آپ کو اس کا جو الٹیمیٹ آؤٹ کم ہے آپ کو اسلام وہ بتاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہ آسمان زمین جتنی قرآن میں جو ہے لفظ جو ارض استعمال کیا جاتا ہے تو یہ انٹرچینجبلی یوز کیا جاتا ہے, یہ زمین کے لیے بھی اور کائنات کے لیے. تو یہ ہے کہ یہ سارے یہ جڑے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا جدا کیا. اب اس سے ہمیں ایک سنگولیرٹی کا ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ دیر مسٹ بین اے ٹائم پہ جب یہ ساری چیزیں اکٹھی تھیں اور بعد میں ان کو پھیلا دیا گیا. اب کائنات کیسے بنی سائنٹیفکلی اسپیکنگ کسی کو بھی ایگزیکٹلی نہیں, مطلب جب ہم کہتے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا تو آئی مین لٹرلی کسی کو بھی نہیں پتا. ہمارے پاس کچھ اس کی ایکسپلینیشنز ہیں جن میں سے سب سے زیادہ پلوزیبل بگ بینگ کی کہ سنگولیرٹی, اس میں سے ریپڈ ایکسپینشن سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ آج دنیا میں جہاں پہ ہے یہ تقریباً کوئی 13.7 ارب سال کے بعد دنیا جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, کائنات جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, یہ اس کی ایک پروگریشن ہے. تو اس پہ اب ہم یہ کہیں کہ اب کائنات سے پہلے کیا تھا, دیر آر سائنٹسٹ جو اس پہ بحث کرتے ہیں. روجر پین روز میرے بڑے فیوریٹ سائنسدان ہیں, وہ اس پہ بحث کرتے ہیں. وہ بگ بینگ کو ریجیکٹ تو نہیں کرتے لیکن اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ اٹس نوٹ کہ سب کچھ جو ہے وہ کسی یعنی عدم سے وجود میں آ گیا تھا. دیر مسٹ ہیو بین تھنگس جس سے وہ بنا ہے, لیکن وہ ایگزیکٹلی کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں کبھی وہ پتہ لگ بھی سکتا ہے. اس کی ریزن سمپل ہے کہ ہمیں کیسے کیوں نہیں پتہ لگ سکتا کہ ہمیں ہم جو مفروضے بناتے ہیں وہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لمیٹڈ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک یونیورس کے ایسے حصے میں کنفائنڈ ہیں ٹائم اور اسپیس میں کہ اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے. اگر ہم نے واقعی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ہم جتنے بھی کائنات کی جو ایکسپینشن ہے, اس کا سرکمفرنس ہے, اس سب کو دیکھیں, پھر اس کو ہم بیک ٹریک کریں, اس کے اندر ریڈ شفٹس کو ہم اسٹڈی کرتے 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 کسی ایک نقطے تک پیچھے جائیں. میرا نہیں خیال کہ یہ ان ٹرمز آف ٹائم ہمارے لیے ممکن ہے. تو ہم پھر بیسٹ ایکسپلینیشنز اس کی دے سکتے ہیں جو بھی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. اب میں آپ کو ایک دو چیزیں سائنٹیفکلی اسپیکنگ آپ کے سامنے رکھوں کہ اس میں کتنا ابہام پایا جاتا ہے. ایک سیریس پرابلم ہے جو گریوٹی ہے اور جو اسٹینڈرڈ ماڈل ہے. اسٹینڈرڈ ماڈل آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی آپ بتائیے. کائنات کا جو اب عام طور پر اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے یہی ریپڈ ایکسپینشن تھیوری, بگ بینگ اور ایٹمز ہیں, اور اس کے بعد انرجی ہے اور ان کی ڈسٹریبیوشن ہے, میٹر ہے اور انرجی ہے, میس ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن ہے, اینڈ سو فورتھ, اینڈ وی ہیو ہگس بوزون جس کو گاڈ پارٹیکل بھی کے طور پہ بھی پریزنٹ کیا گیا, جو کہ سائنٹیفک ٹرم نہیں ہے ایکچولی, وہ ایک لٹری موومنٹ تھی. وہ گاڈ اینڈ پارٹیکل نام رکھنا چاہتے تھے لیکن وہ پبلشرز کو اچھا نہیں لگا تو انہوں نے گاڈ پارٹیکل رکھ دیا کہ وہ باقی پارٹیکلز کو میس دیتا ہے. آئی مین دس از پریٹی مچ اسٹینڈرڈ اینڈ دیٹس آل فائن. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ٹھیک مان لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو کلاسیکل فزکس ہے جیسے وہ اسٹینڈرڈ ماڈل کی جو آبزرویبل اسٹیٹ ہے اس پہ اپلائی کرتی ہے وہ ویسے ہی سب اٹامک لیول پہ بھی کرے گی.
ट्रबल इज कि वो वहाँ पे नहीं करती है, मतलब ग्रेविटी कोलैप्स कर जाती है जब हम सब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, क्वांटम लेवल पे जाते हैं, तो उससे एक डिस्पैरिटी पैदा हो जाती है। अब उस डिस्पैरिटी को हम हल करने के लिए नए नए मफरूज़े बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मफरूज़े दुनिया में इस वक्त स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वी डोंट इवन नो कि डार्क मैटर को मैटर भी कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि मैटर के लिए पार्टिकल्स का होना जरूरी है। एंड वी डोंट नो साइंटिफिकली स्पीकिंग कि जो मैटर है, वो जो डार्क मैटर है, ये पार्टिकल बेस्ड है या नहीं है, और अगर है तो फिर ये डार्क इसको क्यों कहा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, देयरफॉर ये कैटेगरी ऑफ इनएफेबल में आ जाती है। सॉरी, इनएफेबल साइंटिफिकली स्पीकिंग उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो हमें नहीं पता कि डार्क मैटर है या नहीं है, लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की हमें ज़रूरत इसलिए, कॉन्सेप्चुअल ज़रूरत इसलिए पेश आ जाती है कि स्टैंडर्ड मॉडल और आइंस्टाइन का जो व्यू है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें एक प्रॉब्लम पाया जाता है, एक डिस्पैरिटी है, उसको फिल करने के लिए करते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में बहुत गैप है कि कायनात के प्रोसेसेस कैसे काम कर रहे हैं, ये कैसे बनी है। वी डोंट नो, एंड आई थिंक इट्स फेयर इनफ दैट वी डोंट नो। जब अल्लाह ताला पे आप ईमान लेके आते हैं या किसी भी चीज़ को आप मानते हैं, तो हमारी उस अंडरस्टैंडिंग में एक डिग्री आती है जिसको सिर्फ बिलीफ फिल कर सकता है, सिर्फ फेथ फिल कर सकता है, दुनिया की और कोई चीज़ फिल नहीं कर सकती। एंड आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रिसर्च। ये जो आखिरी बात मैंने कही है, मैं इसको मेरे ख्याल में एक्सप्लेन कर दूंगा। और भाई सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, इसलिए कि मैं एक्सप्लेन, ये शुक्रिया आपका, मैं एक्सप्लेन इसलिए करना चाहता हूँ कि कल इसका कोई गलत तर्जुमा ना कर ले कि इन लोगों ने हर चीज़ में बिलीफ घुसा दिया है। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ ऑब्जेक्टिवली क्लियर है वो मैथ्स है, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। वी अंडरस्टैंड स्क्वायर रूट्स कैसे निकलता है, वी अंडरस्टैंड अलजेब्रा एंड एवरीथिंग एल्स कैसे काम करता है, इट्स ऑल देयर। यानी कि इसमें ग्रे एरिया नहीं है, ये आइदर ब्लैक है या ये वाइट है। हाउएवर दैट इज़ नॉट ट्रू, यानी कि हमारे पास ये हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये वाकई ही ऐसा है। I mean, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस तजर्बा कर चुके हैं और वो मान चुके हैं। ये कर्ट गर्डल की मैं बात कर रहा हूँ कि कर्ट गर्डल ब्रिलियंट लॉजिशियन और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने थ्योरम्स के ज़रिए ये साबित किया कि मैथ्स में भी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है। द रीज़न नहीं है, ये बात गौर से सुनिएगा, ये बहुत टेक्निकल एरिया है कि इंसान अगर स्किप कर जाए तो फिर कोई बात, जितनी भी हमने की है ये समझ नहीं आएंगी फिर, कि वी नो के 2 और 2 4 होते हैं। एक मैथमेटिकल सिस्टम हमने डेवलप किया जो हमें ठीक रिजल्ट दे रहा है। बट व्हाट डू वी मीन कि हमें पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, एंड व्हाट डू वी मीन बाय द क्लेम कि ये ठीक रिजल्ट दे रहा है। जस्ट टेक अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए रुक के सोचिए इस पे कि हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल सिस्टम हमें ठीक रिजल्ट दे रहा है, देन हाउ डू वी नो कि ये रिजल्ट ठीक है। गर्डल ये कहते हैं कि उस पे ठीक या गलत का लेबल हम अपने बिलीफ की वजह से लगाते हैं। वी डोंट नो, क्योंकि मैथ इट कंप्लीटली इनडिफरेंट है कि क्या ठीक है क्या गलत है। इट डजंट केयर, इट इज आवर इंटरप्रिटेशन, वी ट्रस्ट दोज नंबर्स कि ये जो कुछ है ये ठीक ही है। सो इवन मैथ्स जैसी चीज भी हम बगैर बिलीफ के उसको यूज नहीं कर सकते। दिस ऑफ कोर्स इज नॉट टू से कि मैथ्स जो है वो हमेशा गलत होता है या वो सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे चलता है, नहीं, ऑब्जेक्टिवली उसको मेजर किया जा सकता है। लेकिन जो हमारी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है वो एक बिलीफ सिस्टम पे ही होती है कि क्योंकि वो जो नंबर्स होते हैं वो अपने आप को खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हमारा एक मेंटल साइकोलॉजिकल थॉट बेस्ड कॉन्स्ट्रक्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया के जो क्लियरेस्ट चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनमें से मैथ्स है, लेकिन वो भी बिलीफ के बगैर उसमें भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। एंड आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑल थिंग कि हम कायनात की जो इंट्रिकेसीज हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी जो क्रिएशन के जो शुरू के मराहिल हैं, उसमें अगर हम बिलीफ को ही अहमियत दें। अब वो बिलीफ क्या हो सकता है कि एक मुसलसल हादसे हो रहे हैं और उससे एक ज़बरदस्त कायनात बन गई है, या उसके पीछे एक खालिक है। मैं इस वक्त में रिलीजियस प्रेमिस पे बात नहीं कर रहा, बहसते मुसलमान हमारा ईमान बड़ा वाज़े है। मैं सिर्फ एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो किसी भी रैशनलिस्ट आदमी के लिए समझने में आसान है कि अब आपने बिलीफ क्या रखना है कि सेट ऑफ रैंडम एक्सीडेंट्स हैं जिसके ज़रिए लॉज ऑफ नेचर भी बन गए और उनके ज़रिए कायनात के प्रोसेस को गवर्न भी किया जा रहा है और कायनात बनी भी वैसे ही है,
या इसके पीछे कोई खालिक है, देयर इज अ कोज, एंड इफ देयर इज अ कोज तो उस कोज की अपनी कुदरत, उसकी अपनी पोटेंशियल, उसकी यानी कि कैपेबिलिटी क्या होगी, वेयर इज, अगर यूनिवर्स समझ नहीं आता तो फिर वो भी समझ नहीं आएगी, सिवाय इसके कि वो कायनात से बढ़ के है। जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल। और सब एक चीज इसमें है, बस एक मैं जो चीज फॉलो करता हूँ ऑब्वियसली यजदानी साहब जी। जरा ब्रीफ रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बातें लंबी नहीं करूंगा जी, जरूर। तो मेरा मतलब ये ख्याल है कि देखिए एज अ मुसलमान मेरा तो ये है कि हमें खुदा पे तो यकीन रखना, अपने दीन पे पूरा जो भी अरकान है, सारी चीजें जो है, सारी कंडीशंस हमें तो वो तो अपने बिलीफ में रखना ही है, क्योंकि हमारी लाइफ लिमिटेड है, यूनिवर्स इज नियर टू अनलिमिटेड। और जो भी है, अगर हम ये सोचे कि मैं सारा रिसर्च करके फिर जब मुझे आंसर मिलेगा तब ईमान लाऊंगा, या कोई अगर इस तरीके से सोचता है, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इडियोटिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसकी लाइफ तो लिमिटेड है। वो जब तक उसको आंसर मिलेगा, पता नहीं उसे मिलेगा भी कि नहीं, और इससे पहले जितने लोग जा चुके हैं, आंसर तो मेरे पास आज भी नहीं है। और आई थिंक टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, रिसर्चेस चल रहे हैं, आई थिंक कोई आउटकम आएगा, लेकिन वो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। बस ये कहना चाह रहा था कि हाँ, बिलीफ पहले हमें अपना रखना होगा। आपकी बात भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मतलब सही, कि मैं कौन सही, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बात है। और यस, दिस पार्ट कॉल्ड बिलीफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन साइंस एंड दीन आल्सो। थैंक यू। ये जितने साइंटिस्ट होते हैं वो ज्यादा फिलोसफर ही होते हैं एक्चुअली, डीपली अगर आप मुशाहिदा करें इस बात का तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो इवन अभी पॉडकास्ट में ये लोग आते हैं तो वो सब फिलोसफी की बात कर रहे होते हैं, ज्यादातर उनकी बातें तो फिलोसफी की होती है। ट्रू। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया दोनों। थैंक यू सर।